Hello to my students. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video on chapter number 6, that is Mijbil the author. And today we'll be reading part 3 of it, that is Mijbil in the Plane. We've seen that Mijbil and author Gavin Maxwell, they've created a good bond. They've established a good bond between them. And now, finally, it was the time for Gavin Maxwell to transport Midge from Basra to London. Now, what all things will he do? What all challenges is he going to face? This is what we are going to read. And, we are going to read about Mijbil's hidden tales. A hesitant creature he was in earlier part, where he was aloof, indifferent. But now we'll be looking at a different side of Mijbil. Okay, chalo. Without wasting time, we'll start. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Midge to England and to Kemisfiona. देखो, dreaded का मतलब होता है scared, prospect का मतलब होता है किसी भी चीज़ की possibility. तो वो कह रहा है कि जब मैं बासरा में था तब तो it was all good. I was enjoying with Mijbil and the kind of life I was having. After Johnny died, I was all sad and alone. But the way Mijbil entered into my life, he brought bundle of happiness into my life. He entered, he opened a casket which was filled with happiness. But after that, he said, when the days of going to London were coming near, जब वो दिन पास आते जा रहे थे तो मेरे मन में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, because I knew that transporting an animal which is that playful, which is that energetic, which moves within a blink, वो एक जगह से दूसरी जगह एक blink में चला जाता है, ऐसे animal को move करना, transport करना बड़ा मुश्किल था. So he was a little hesitant and he was a little scared. Okay. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. तो जो British airline थी, it didn't allow animals on board, तो हमारे author Gavin Maxwell को connecting flights लेनी पड़ी. पहले वो बासरा से पेरिस गया किसी वहाँ की किसी local airline से, and फिर पेरिस से लंदन वो गया British airline से. वहाँ पर whatsoever कौन सी airline ली, that is not the matter of concern. हमने देखा कि वो मिजबिल के लिए उसने अपने ट्रैवल को बहुत इलोंगेट किया एंड उसने कनेक्टिंग फ्लाइट्स को लेना प्रेफर किया, बिकॉज और कोई एयरलाइन उसको एनिमल्स को लेके जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी. The airline insisted that Midge should be packed into a box not more than 18 inches. देखो, insist का वैसे तो मतलब होता है plead करना, किसी से कोई request करना, लेकिन यहाँ पर मतलब है to request या to instruct. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं. तो एयरलाइंस ने इंस्ट्रक्शंस दिया कि जो मिजबिल है, जो आपका एनिमल है, कोई भी एनिमल आप जो लेके जा रहे हो, उसको आप एक बॉक्स में पैक करेंगे और वो बॉक्स 18 इंच से ज़्यादा बड़ा होना नहीं चाहिए. दैट वाज द गाइडलाइन ऑफ एयरलाइन एंड Gavin Maxwell, he was happy that finally कोई तो एयरलाइन है जो एनिमल्स को अलाउ करिए. तो he was ready to abide by any rules and instructions that airline gave. So he prepared for that box. Now, 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made and an hour before we started, I put Midge into the box so that he would get accustomed to it and left for a hurried meal. तो मैंने कहा था कि 18 इंच स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए और उस बॉक्स को भी आप अपने पैरों पे कैरी करोगे. यू कैन नॉट कीप इट ऑन योर लैप, यू कैन नॉट कीप इट ऑन योर सीट, इट शुड बी केप्ट ऑन योर फीट सो दैट, बिकॉज देर आर अदर पैसेंजर्स ऑल्सो, देर नॉट ऑल द पीपल हु आर कंफर्टेबल विद एनिमल्स ऑन बोर्ड ऑन प्लेन, up high in the sky. So for the safety of other passengers and also to provide a facility of transporting animals from one place to another, the airline suggested or rather instructed that the animal should be carried in a box not more than 18 inches square, and also that box should be, while traveling, that box should be kept on the feet. Okay. Now, so Gavin, he quickly got that box made, and on the day of flight,
he put Mijbil an hour before in the box. Look, the box was somewhere like that. It just had little holes. Okay. And along with little holes, it had ऐसा ना एक लाइनिंग भी थी, यानी कि पूरे अगर ये बॉक्स का एक साइड है तो उसी साइड पे ऐसे बिल्कुल मेटल की लाइनिंग भी थी ताकि बॉक्स स्ट्रॉन्ग हो और एनिमल उस बॉक्स को तोड़ के बाहर ना निकल जाए। ये जो होल्स थे ये किसके लिए थे? वेंटिलेशन के लिए थे और प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए थे। ठीक है। When give me a second, I just so ये जो डॉट्स थे, ये जो होल्स थे, ये प्रॉपर ब्रीदिंग और वेंटिलेशन के लिए थे और जो लाइनिंग थी वो किसके लिए थी? प्रोटेक्शन के लिए थी। कहीं एनिमल उस टाइम पे जब प्लेन हवा में है तब पूरा बॉक्स तोड़ के बाहर ना निकल जाए और पैसेंजर्स की सेफ्टी को हिंडर ना करे, इसलिए दैट बॉक्स वो दिस काइंड ऑफ बॉक्स वाज टू बी मेड। तो गैविन मैक्सवेल ने वो बॉक्स बनवाया और बॉक्स बनवाने के बाद 1 घंटे पहले ही, अभी वो देखो कॉन्सुलेट जनरल के होटल, वो जो रेजिडेंस एरिया था वो वहीं रह रहा था, तो उसने अपना सामान पैक किया, बॉक्स में मिजबिल को डाला, ऐसे बॉक्स को पैक किया और रिसेप्शन एरिया पे उसने क्या किया, सामान और उस बॉक्स को रख के वो रेस्टोरेंट चला गया कॉन्सुलेट जनरल के, सो दैट ही कैन क्विकली हैव समथिंग, ही कैन क्विकली ईट समथिंग। और उसके बाद क्योंकि ही हैड अ लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग, उसको बहुत लंबी फ्लाइट्स कैच करनी थी, वो भी एक नहीं दो, 1 to Paris and from Paris to London. ओके, तो फॉर दैट व्हाट ही डिसाइडेड कि वो उसको वहाँ पे सारा सामान उसने रिसेप्शन पे लगा और वो जल्दी से कुछ खाने को चला गया। और अकस्टम्ड का मतलब होता है टू गेट अक्लेमेटाइज्ड। अक्लेमेटाइज्ड यानी किसी चीज़ का हैबिचुअल होना, किसी चीज़ से एकदम नॉर्मल हो जाना, उसमें टाइम लगता है। तो उसने सोचा कि 1 घंटा मैं मिजबिल को बॉक्स में रखूँगा तो शायद उस बॉक्स में उसे नॉर्मल फील होगा और ट्रैवलिंग एकदम स्मूथ होगी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वी आर गोइंग टू रीड नाउ। When I returned, there was an appalling spectacle. There was complete silence from the box, but its air holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried. Appalling का मतलब होता है surprising, बड़ा सारा जो आपने कभी कुछ something which you never expected. Spectacle का मतलब होता है एक scene, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाना, एक बड़ा सा सीन क्रिएट हो जाना, उसे हम स्पेक्टेकल भी कहते हैं। एंड ट्रिकल का मतलब होता है कोई चीज़ बहना। याद है हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, जब वो जाता है और टैप ओपन करने की कोशिश करता है तो अब द वाटर ट्रिकल्ड आउट ऑफ द टैप, सेम वर्ड यूज हुआ था, उसी का मतलब होता है फ्लो आउट, बहना। अब क्या हुआ, वो चला गया। जैसे ही वो वापस आया अपना सामान और अपना अपने पेट को कलेक्ट करने, उसने देखा कि उसके सामान के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी है। एंड टू हिज सरप्राइज ही वॉजंट अवेयर कि क्या हो रहा है वहाँ पर। उसे नहीं पता था कि इतनी सी देर में 10-15 मिनट में जब वो कुछ खा के आया, इतनी ऑलमोस्ट आधे पौन घंटे में जितनी देर उसने अपना खाना खाया, वहाँ से वापस आया, इतनी देर में ऐसा क्या हो गया कि उसके लगेज के पास, उसके एनिमल के पास, उसके पेट के पास इतनी सारी भीड़ जमा है। तो when he pierced through the crowd and reached his luggage and reached Mitch, he got to know कि Mitch के जो होल्स थे, वो जो चिंक्स थे, मैंने बताया था ना, जैसे ये बॉक्स का साइड था तो इसमें जो ये एयर चिंक्स थे, इन एयर चिंक्स में से ब्लड ट्रिकल हो रहा था, इस एयर चिंक्स में से ब्लड बाहर निकल रहा था। एंड मैक्सवेल लुकिंग एट दैट, ही वॉज एक्सट्रीमली स्केर्ड एंड ही टोर द बॉक्स ओपन। उसने जल्दी से बॉक्स फाड़ के देखा। अब देखा तो उसे क्या पता लगा, I whipped off the lock and tore open the lid. And Mitch, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to the shreds. Whipped off का मतलब होता है किसी चीज़ को जोर से खींच के तोड़ देने को क्या कहते हैं, whipped off. Whimpered का मतलब होता है जब आप डर के मारे बहुत ऐसे मीक सी आवाज़ में, बहुत शांत सी, बहुत ही पतली आवाज़ में जब आप डर के मारे रोते हो, that is what whimpering is. And shreds का मतलब टुकड़ों में। याद है ग्रेड 9 में एडवेंचर ऑफ टोटो आपने चैप्टर पढ़ा होगा। He tears the grandchild's blazer in shreds. वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है उसके ब्लेजर के, वही shreds वर्ड यहाँ पर है। तो अब देखो अब क्या हुआ, जैसे ही मैक्सवेल वहाँ पहुँचे उसने ज़ोर से खींच के लॉक को तोड़ा
उसका लिड हटाया और जैसे उसने लिड हटाया मिजबिल जंप करके उसके पैरों के पास आके रोने लगा। एंड ही सॉ कि जो अंदर की मेटल की लाइनिंग थी, मिजबिल उस छोटे स्पेस से इतना ज़्यादा डर गया था। ही गॉट स्कैर्ड बिकॉज ही वॉज नॉट यूज टू सच स्मॉल स्पेस. He was not at all used to this confined space. When he was put inside that box, Mitchell got extremely scared, and out of hesitation, out of fear, he started with his sharp teeth, he started biting the lining of the बॉक्स. जो बॉक्स के अंदर जो लाइनिंग थी, जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, उसको उसने दांतों से काटना शुरू किया. और क्योंकि वो मेटल की थी और एक जगह से वो कट गई, तो वो मेटल की लाइनिंग को तो पूरा काट नहीं पाया, बल्कि उसने अपनी पूरी बॉडी को मेटल से क्या कर दिया, इंजर कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से ब्लड आ रहा था. और ब्लड के आने की वजह से बच्चों क्या हुआ, he got that वो blood was sticking to the wall and it was trickling out of the chinks of that box, and the box was constantly moving. उसमें से ब्लड निकल रहा था और उसी वजह से सारे लोग उस लगेज के आसपास इकट्ठा हो गए. मैक्सवेल को ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा. ही वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड ही वॉन्टेड टू सेव हिज पेट, बट he wanted to keep his pet on, he wanted to pet it, he wanted to care for it, he wanted to love it at that point of time, and he wanted to tell the pet that I am there for you, you don't need to get scared. But then he had very big problem, and that was, सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि उसने जल्दी से क्या किया, सारे लाइनिंग को हटाया. एक बार रीड कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left in, it was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distant. तो उसने कहा कि मैंने क्या किया था, मैंने उसको जल्दी से उसकी जो भी लाइनिंग थी सबको फाड़ फूड़ के, सिर्फ एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ही बचा था मेरे पास. लेकिन जैसे ही मैंने क्लॉक की तरफ देखा, मैंने टाइम की तरफ देखा, तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट थे फ़्लाइट के टेक ऑफ होने में. यानी कि फ़्लाइट के टेक ऑफ होने में सिर्फ 10 मिनट थे और मैं अभी भी कॉन्सुलेट जनरल में था. मुझे अभी एयरपोर्ट जाना था जो कि 5 मील दूर था. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन Mitchell was injured and Maxwell didn't have time. He wanted to tell Mitchell that I'm there with you and I won't put you back in box, but he was helpless. He needed to transport the Mitchell in that box only. Mitchell was injured. The box was not safe as of now. But still, if he would look, when the moment he looked at the clock, he found that he only had 10 minutes in his hand and he needed to take a quick decision. So he was feeling very sorry and apologetically what he did, he put the Mitchell back into the box and he sat in the cab for airport, because if he would not have started for now, he would have surely missed his flight. अगर वो उस टाइम शुरू नहीं करता एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए, तो पक्का उसकी फ्लाइट क्या हो जाती, मिस हो जाती. I put miserable Mitch back into the box, holding down the lid with my hand. I sat in the back of the car with the box beside me, and the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. ओके तो उसने कहा कि मैं उस वक्त इतना ज़्यादा हेल्पलेस था, इतना मिजरेबल फील कर रहा था, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. तो मैंने मिजबिल को बॉक्स में रखा, उसके लिड को मेरे हाथ में रखा, अपने साथ जब मैं कैब में बैठा मिजबिल को अपने साथ रखा, मैं उसको पैट कर रहा था. और कैब ड्राइवर ने इतनी ज़ोर से गाड़ी चलाई है, ऐसे लग रहा था कि कोई बुलेट जैसे गन से बुलेट निकलती है, वैसे जैसे हम शूट करते हैं गन बुलेट को, तो जैसे ही वो जाती है और फिर डिफ्लेक्ट होकर डायरेक्शन चेंज कर दी थी 1 सेकेंड में, उसी तरीके से हमारी कैब बासरा की स्ट्रीट्स में चल रही थी, चेंजिंग एंड डिफ्लेक्टिंग दी directions, and it was very difficult for me to control. I was very scared for 2 things. One was Mitchell, that Mitchell was not in the right condition, and second, I was very, very afraid for the flight. I thought that I almost missed the flight, but क्या होगा, then we'll see. देखो, रिकोशेटिंग बुलेट का मतलब होता है जब डिफ्लेक्ट हो जाती है ना बुलेट, एक किसी चीज़ से ऐसे जाके डिफ्लेक्ट हो जाए, उसे रिकोशेटिंग बुलेट कहते हैं. ठीक है. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through
to it by the infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel for Fitch, which was for Mitch, to keep it in a cool place. Infuriated का मतलब क्या होता है? extremely angry. तो उसने कहा luckily मैं एयरपोर्ट में पहुंचा, and at that point of time 1956 के टाइम पे ये फ्लाइट्स ट्रैवलिंग बाय प्लेन वाज नॉट एज यूजुअल एज ऑफ नाउ. तो तब रुका जाता था जब तक सारे लोग बोर्ड नहीं करते थे, 2-3 अनाउंसमेंट करते थे, और जिस हिसाब से उस कैब ड्राइवर की स्पीड थी तो वो पहुंच गया था, और सारे ऑफिशियल्स एयरपोर्ट के उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, बट जैसे तैसे करके ही बोर्डेड द फ्लाइट. Now after boarding the flight he was feeling lucky for one thing, that उसकी जो सीट थी वो क्या थी? एक्सट्रीम फ्रंट में थी. यानी कि पूरे आयल के शुरू होने के बिल्कुल पहली वाली जो सीट थी वो किसकी थी? मैक्सवेल की थी. एंड ही वाज फीलिंग गुड अबाउट इट कि नो मैटर व्हाट, चलो सीट तो स्टार्टिंग में है एंड दिस इज अ गुड पार्ट. ठीक है. देन उसने क्या किया, अपने फ्लोर को एकदम न्यूज़पेपर से, क्योंकि उस बॉक्स में से ब्लड ट्रिकल हो रहा था, तो न्यूज़पेपर से कवर किया, बॉक्स को वहाँ रखा और लिट को भी कवर कर दिया था. अब उसने फिर बेल रिंग की उसने, और उसने एयर हॉस्टेस को बुलाया. व्हेन एयर हॉस्टेस केम ही हैंडेड ओवर हर अ पैकेट ऑफ आई थिंक कूल, क्या था, फिश थी, एक पार्सल था फिश का, एंड दैट पार्सल वाज सपोज टू बी फॉर, वो किसके लिए था? वो मिजबिल के लिए था. इट वाज मिजबिल्स फूड. एंड देन ही इंस्ट्रक्टेड एयर हॉस्टेस दैट शी शुड कीप दैट पर्टिकुलर पार्सल एंड शी मस्ट कीप दैट पर्टिकुलर पार्सल इन अ कूल प्लेस, एक ठंडी जगह पर रखे, क्योंकि वो उसके पेट का खाना था. ठीक है. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. देखो मैंने इसको बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि you can use this term. I took her into my confidence. ये एक तरीके का फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं किसी को अपने बातों पर विश्वास दिलाने को. ठीक है. तो ये लाइन यूज करना. Now she said I took her into my confidence. मैंने उसको सारे जो पिछले आधे घंटे में मेरी पूरे साथ हुआ, कैसे मैंने सामान को रखा, मिच बिल्डर के मारे उसने पूरी लाइनिंग को तोड़ दिया और जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी इंजर हो गई, ब्लड बाहर निकला, किस तरीके का ट्रैवल मैं कैब में करके आया हूँ. तो शी वॉज अ लिटिल सिंपथेटिक एंड शी ऑल्सो सेंसिटाइज्ड टू द मिजबिल्स कंडीशन. शी सेंसिटाइज्ड टू मिजबिल्स कंडीशन एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाई ही सेड दैट एयर होस्टेस वाज अ क्वीन ऑफ अ काइंड. एक बहुत ही डिफरेंट, जेनरस, यहाँ पर क्वीन ऑफ अ काइंड क्यों थी वो? क्योंकि शी वॉज जेनरस, शी वॉज very kind, she was compassionate, we would say, towards animals. So she had compassion, she was generous, and all the kind of good feelings she had. And he said, she was such a good lady. Why? मैं अभी आपको next paragraph में बताऊंगी. लेकिन उसकी जो she could actually feel the pain of Mitchell, she could actually feel the pain of the animal, and that is why I was admiring her. मैं उसको admire कर रहा था, I was looking up to her कि वो बहुत अच्छी lady है. she is one of the most generous people I've ever met in my life. लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि she suggested that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. उसने ऐसा क्यों बोला? Why she was a queen of her kind, why she was generous, kind, compassionate, and she sensitized? Because she asked Gavin Maxwell, or rather she allowed Gavin Maxwell to keep Mitchell on his lap. Starting में याद है एलेंस ने क्या कहा था कि जब आप ट्रैवल करोगे तो आपका एनिमल बॉक्स में ही होना चाहिए. लेकिन बॉक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी. मिचबिल डर रहा था और कहीं ना कहीं एजी पीसेस अभी भी बॉक्स में थे, जिसकी वजह से इट वाज अनसेफ फॉर मिचबिल टू ट्रैवल इन दैट बॉक्स. तो जैसे ही मैक्सवेल ने ये बात बताया तो एयर हॉस्टेस ने उसे अलाउ किया. ठीक है सर, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. आप क्या करो, आप मिचबिल को अपनी लैप पे रख के ट्रैवल
कर सकते हो. And he said, when she said that, I could feel that she was really compassionate for animals, and she could understand my pain, and out of admiration, out of looking up to her कि how good of a lady, how generous she was, I would kiss her hand into admiration. मतलब मैं उसका मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता था. मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रहा था उसकी तरफ. ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है किसी को थैंक यू बोलना, किसी के लिए थैंक्स फील करना. But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. उसने कहा उसने तो मुझे अलाउ कर दिया, लेकिन क्योंकि मेरे लिए भी ऑटर्स को पालना एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, एंड शायद दैट लेडी ऑल्सो डिडंट नो अबाउट ऑटर्स, सो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट वाज गोइंग टू फॉलो आफ्टर दैट. वो बोले कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि हम अगर मिजबिल को बॉक्स के बाहर निकालेंगे तो क्या होने वाला था. Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat." I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. So, जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, मिज एक सेकेंड, विद इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड मिजबिल गायब हो गया. वो पूरे के पूरे प्लेन में इधर से उधर भाग रहा था बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड. लुक, एनिमल्स डोंट रियली वॉन्ट टू एक्चुअली स्केयर अदर पीपल. ऐसा नहीं होता बिकॉज वो खुद डरे हुए होते हैं, तो आउट ऑफ सेविंग देयर लाइफ उनका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो इधर से उधर बहुत जोर से भागते हैं. तो मिजबिल वॉज डूइंग एग्जैक्टली सेम. He was running from here to there. बहुत जोर जोर से वो भाग रहा था इधर से उधर, and he got extremely scared. And then there was a lady. जैसे ही उसने उस मिजबिल को देखा, वो अपनी सीट पे उठ के जंप करने लग गई. She was scared and she started, देखो प्लेन में एक चूहा है. She started shrieking and screaming that there is a rat, there is a rat. And whole प्लेन वॉज फिल्ड विद यू एंड क्राई. पूरे के पूरे प्लेन पे क्या हो गया था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. एंड जैसे ही, अब मैक्सवेल को थोड़ा सा डर लगा इस चीज़ का, एंड ही वांटेड कि मिजबिल को कुछ ना हो जाए. तो जैसे ही उसने देखा कि मिजबिल एक पोटली होता है. सबसे पहले स्क्वॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाना, श्रेक का भी मतलब होता है चिल्लाना, और पोटली का मतलब होता है फैट मैन, अ स्टॉकी चंकी, एकदम मोटा ताज़ा इंसान था. तो एक सरदार जी थे, वाइट टर्बन्ड मैन थे, जो कि क्या कर रखे थे, एकदम ही वॉज अ लिटिल फैट मैन. एंड उनके पैरों के बीच में से कौन जा रहा था, मिजबिल की टेल मैक्सवेल को दिखाई दी. ओके, लुक लाइक दिस. सो दिस वॉज अ spectacle. This was a kind of, the hustle and bustle got created on the plane, and this was the portly white turbaned man. Okay, next. Diving for it, I missed, but found my face covered in curry, perhaps, said the air hostess with the most charming smile. It would be better if you resumed your seat, and I will find the animal and bring it to you. Another reason to admire that lady, to feel that yes, she was the most generous woman available on this earth, present on this earth. So he said, I dived. मुझे जैसे ही उसकी टेल दिखी, मैंने जोर से उस इंसान के पैरों पे छलांग लगाई. मुझे लगा कि मैं मिजबिल को पकड़ लूँगा, लेकिन छलांग लगाने से मुझे मिजबिल तो मिला नहीं, लेकिन वो जो पोर्टली इंडियन मैन था वो कड़ी खा रहा था. देखो ये सारे के सारे, आई एम रियली सॉरी, गिव मी अ सेकेंड. ये जितने भी वो लोग होते हैं, व्हाट डू वी से, जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो हम इंडियंस को एक तरीके से चिढ़ाते हैं या हमारे ऊपर रिमार्क्स करते हैं कि इंडियंस सारे टाइम करी खाते रहते हैं. तो वही रिमार्क यहाँ पर मैक्सवेल ने भी किया है कि वॉज ईटिंग करी एज यूजुअल. एक एवरेज इंडियन की तरह वो करी खा रहा था. एंड वो मैंने जब जंप किया तो मुझे मिजबिल तो मिला नहीं, पूरी की पूरी जो करी वो खा रहा था वो मेरे मुंह पर गिर गया. आई गॉट स्मियर्ड विथ करी ऑन माई face. And then that lady, that air hostess came and she said, you please settle down, you don't need to move here and there, it's not safe for you, you sit nicely on your seat and I will go and I will look for your animal and I will surely bring it safely back to you. कि तुम बैठो, मैं आपका एनिमल आपके लिए वापस ले आऊंगी.
And she said this was again another thing. She was having most charming smile. She was not scolding me at this point of time. She was not feeling कि भैया एक animal की वजह से इतना ज़्यादा plane में problem create हो गया है. Rather, she was fine, she was okay with everything, and she also extended the hand of help. बल्कि उसने help करने की कोशिश की. I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from many feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Midge bounded to my knee and began to nuzzle my feet and my neck. Okay, bounded यानी कि एक जल्दी जल्दी से चढ़ना, एंड नज़ल का मतलब होता है पेक करना. जब आप अपने नोज को किसी के साथ रब करते हो, you basically when you try to show your love and care to somebody else, to your when you try to show your affection to somebody else by rubbing your nose onto that person, that is what nuzzle is. तो अब क्या हुआ, इसने कहा कि मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं बैठा, एंड आई वाज क्रेनिंग माई नेक. क्रेनिंग का मतलब होता है ऐसे घुमाना. मैं अपने नेक को क्रेन कर रहा था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सॉ कि मिजबिल ने क्या किया. मिजबिल वॉज आई हर्ड अ साउंड. एक बहुत ही फेमिलियर सी साउंड मुझे सुनाई दी, और वो फेमिलियर सी साउंड जैसे मैंने अपने पैरों के पास देखा. सो मिजबिल वॉज देयर एंड ही वॉज बाउंडिंग ऑन माई बॉडी. वो जल्दी जल्दी से मेरे बॉडी पे चढ़ के मेरे शोल्डर पे आ गया, एंड विद हिज नोज ही वाज नजलिंग, ही वाज पेकिंग, ही वाज ट्राइंग टू शो लव, एंड ही वाज फीलिंग वार्मथ over my body, and finally he got settled, and the traveling was like, finally I could transport Mijbil peacefully on that flight. Did you understand till here? ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं. What Mijbil did with box, पूरा का पूरा आ सकता है कि what happened when Maxwell tried to transport Mijbil with on a plane, on a flight. तो ये सारा चीज़ें, स्क्वॉक्स हो गए, स्क्रीम्स हो गए, पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई ऑन द प्लेन when he took a plunge to catch Mijbil, his face got smeared with curry. So you have to write each and every detail in that, and this part is important and you have to remember it. I hope ये clear हो गया होगा. अब जल्दी से हम learning outcome देख लेते हैं. We saw that this particular journey had created a stronger bond between the author and the author, and with each day passing, their bond was becoming stronger and stronger. हर एक passing दिन के साथ, हर एक passing दिन के साथ उनकी bond, उनका जो रिलेशनशिप था, उनका जो पेट पेरेंट रिलेशन था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था. एंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हियर वी हैव सीन दैट मैक्सवेल, ही डिडंट हेजिटेट, ही कम्युनिकेटेड ईच एंड एवरीथिंग टू एयर होस्टेस, एंड दैट इज़ व्हाई शी कुड हेल्प. कई बार हमें लगता है कि पीपल शुड हेल्प अस, पीपल शुड help us in this way, and we should have this or have that, but we should have a clear communication with them. So this is what we also learned, that whenever you're in problem, you should speak about your problem very clearly to the people and the kind of solution you're expecting. Now it's up to them whether they will take the solution, whether will they give you the same solution or something else. That is up to them, but you should communicate effectively. Okay, चलो जल्दी से वो देखते हैं हम लोग असेसमेंट. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द ऑथर वाज. क्या लगा था उसे वुमन ने, जैसे अपने पैरों के पास में एक एनिमल को देखा था तो उसने क्या चिल्लाया, वेदर देयर वाज अ डॉग, एन ऑथर, अ रैट और अ सील. चलो आई विल गिव यू 5 seconds. And the answer is, she shouted that there was a rat, there was a rat. Make sure you write your answer so that I will check how many of you are attempting it. Next. How did the airline wanted the author to carry Mijbil? Airline ने क्या instructions दिए थे कि किस तरीके से author को carry करे. इन अ सेपरेट कंपार्टमेंट. क्या एरोप्लेन पे बिल्कुल एक अलग सा कंपार्टमेंट था, एक बॉक्स में, कि एक नया बॉक्स बनवाना है 18 स्क्वायर इंचेस का, बैग में, या नन ऑफ द अबव. मना ही कर दिया कि इन सब ने कोई और ही तरीका बताया. सो फॉर दिस आई विल नॉट गिव यू 5 seconds. यू प्लीज राइट योर आंसर्स डाउन क्विकली, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज in a box. The airline instructed that the animal should be carried in a box and it should not be more than 18 inches square. Okay.
What is the meaning of an appalling spectacle? एक appalling spectacle का मतलब क्या होता है? याद है मैंने तुम्हें बताया था, appalling का मतलब होता है surprising या shocking, और spectacle का मतलब होता है scene. देखो, a safe space, a funny scene, a mysterious situation, or a shocking scene. And the answer is very clear here, that is a shocking scene. आई थिंक इस पार्ट को आपको बिल्कुल, मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा ये पार्ट क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेश्चंस नहीं होंगे इस पार्ट से रिलेटेड. अगर किसी और पार्ट, किसी और चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट दोज क्वेश्चंस. आई विल श्योरली हेल्प यू ऑल. And at the end, as I say, for your grade 10 preparations, please stick to Mission Gyan, and for your grade 10 English preparations, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care and study well.